Very good morning, everyone. This is the 1 minute. Let me increase the font. This is the question we will be doing today. The following is the summarized balance sheet of Safe Moving Limited. So the balance sheet given is of Safe Moving Limited as on 31st March 2018. Their authorized and issued capital is given. Now, what do you mean by authorized capital? Authorized is nothing but the registered capital of the company. So, the registered as well as the issued is same, which is 60,000 shares of preference shares. That is 6% preference share of rupees 10 each. That is 6 lakh. So number of shares is 60,000. That is also given in the question. And after preference shares, equity shares numbers are 12 lakh shares of rupees 1 each. So 12 lakh into 1 is 12 lakh. इसके बाद we have debenture, which is 6% debenture, 2,40,000. Add interest is 12,000, which is coming to 2,52,000, including arrears of interest 2,52,000. 2,40,000 capital है. Accumulated interest जो है, interest due जो है on debentures is 12,000, coming to the total of 2,52,000. 1 minute. Now after this, we have bank overdraft 3,30,000. Directors have given loan to the company for 1,50,000. Creditors is for 5,40,000. Now when we come to the asset side, we have goodwill 2,40,000. We have land and buildings 5,34,000. Plant investment in subsidiary company at cost. Now, what do you mean by a subsidiary company? Subsidiary company is a company whose majority shares are purchased by an other company called the holding company. तो subsidiary company वो company को बोलते हैं जिसका मैक्सिमम मेजॉरिटी शेयर, मेजॉरिटी मतलब मोर देन 50% shares are acquired by an other company called the holding company. So this Safe Moving Limited has an investment in the subsidiary company at 1,50,000, which is the cost amount. Stock is there, debtor is there, and you have profit and loss account. See, I have told you every time that in this type of question, in this type of question that is in internal reconstruction, you will majority times you will find that the profit and loss account is in the asset side. Now, what do you mean by profit and loss in the asset side? This simply means that the company is incurring losses. Profit and loss account in the asset side signifies accumulated losses, net loss. फिर हमारे पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है. दिस इज डिफर्ड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस विच इज फिक्टिशियस एसेट. सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बहुत सारा किया बट क्यों कुछ यूज नहीं है बिकॉज द कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी. इसको बहुत सालों से लॉसेस हो रहा है. तो हमें यहाँ पे आगे दिस इज द क्वेश्चन, दैट इज दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ द क्वेश्चन. Now let us come to the note given, note provided, additional note given. There is a contingent liability for damages rupees 60,000. Now what do you mean by a contingent liability? Contingent liability is a liability which is uncertain.
which is not sure. It may arise और इट मे नॉट अराइज. मतलब ये कंटीजेंट लाइबिलिटी जो है वो पक्का लाइबिलिटी नहीं है. इट इज अ अनसर्टन लाइबिलिटी. इट इज नॉट अ कंफर्म्ड लाइबिलिटी. इट मे बी पेएबल. डैमेजेस मे बी पेएबल, मे नॉट बी पेएबल. मतलब इसके लिए क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में देखना पड़ेगा कि अगर हमें ये 60,000 पे करना पड़ेगा और ये अमाउंट भी विल नॉट बी सर्टन. कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, सेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. पर कंपनी के ऊपर डैमेजेस के लिए कंटिजेंट लाइबिलिटी है कि इनको डैमेजेस पे करना पड़ सकता है 60,000 का. इसके बाद वी हैव preference shares are cumulative and dividends are in arrears for 3 years. मतलब ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड नहीं मिला है फ्रॉम पास्ट 3 years. उनका 3 साल से डिविडेंड जो है वो एरियर्स में है. तो ये दो नोट्स है, ये दोनों कंटिजेंट लाइबिलिटीज है. ये पे कर भी सकते हैं कंपनी, नहीं भी पे कर सकते. दैट डिपेंड्स अपॉन द rest of the question. If anything is mentioned about these two things, we will take appropriate action. So now let us move ahead. The capital reduction scheme setting the following terms was duly approved. ये जो स्कीम है कैपिटल रिडक्शन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, ये कौन अप्रूव करता है? ये लॉ अप्रूव करता है. तो विद सम scheme, the setting are approved with the following terms. Now let us see what are the terms in which the internal reconstruction is approved. Now let us see the first point. The first point says the preference shares to be reduced to rupees 8 per share. So they have said the preference share रिड्यूस हो गया 8 रुपए में. पहले प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का था. अब जो प्रेफरेंस शेयर है वो कितने का होगा? वो 8 रुपीज का होगा. प्रेफरेंस शेयर कितने का होगा? 8 रुपीज का. और एंड इक्विटी शेयर टू 25 पैसे ईच. जो इक्विटी शेयर है वो पहले 1 रुपीज का था. व्हेन वी लुक इनटू द क्वेश्चन, इक्विटी शेयर was for 1 rupees and preference share for 10 rupees each. अब जो नया पॉइंट आया है उसके हिसाब से इक्विटी शेयर रिड्यूस हो रहा है 8 रुपीज में और प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस हो रहा है 225 पैसे each, and to be consolidated as shares of rupees 10 each and rupees 1 each, fully paid respectively. तो यहाँ पे कोई शेयर पार्टली पेड का नहीं हो रहा. 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में कन्वर्ट हो रहा है. तो हमें 10 रुपए का शेयर को 8 रुपए में क्रिएट करना है. तो हमें ओल्ड 10 रुपए के शेयर को कैंसिल करना पड़ेगा और बदले में 8 रुपए का शेयर क्रिएट करना पड़ेगा. और जो 1 रुपए का इक्विटी शेयर है जूना, उसको कैंसिल करके नया 25 पैसे के शेयर को क्रिएट करना पड़ेगा. और इधर किधर भी नहीं बोला है फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड. मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए से 8 रुपए का होगा प्रेफरेंस शेयर के लिए और इक्विटी शेयर के लिए 1 रुपए से 25 पैसे का. तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है. तो जूना शेयर कैंसिल होके नया शेयर क्रिएट हो रहा है और कंपनी को 10 रुपए के बदले में 8 रुपया पे करना पड़ेगा और 1 रुपए के बदले में 25 पैसे. सी दिस कंसोलिडेशन के बारे में जो दिया है ना, दिस कंसोलिडेशन का हम बाद में करेंगे बिकॉज देयर विल बी अदर शेयर्स ऑल्सो विच हैव बीन क्रिएटेड. जो इसलिए मैं ये कंसोलिडेशन हम अभी नहीं करेंगे. Consolidation we will do at the end. So let us keep consolidation aside and we will do other things now. What is consolidation? We have done one sum.
on consolidation as well as subdivision, but I will be again explaining you about consolidation. But now let us see what is happening. प्रेफरेंस शेयर जो है रिड्यूस हो रहा है 8 रुपीज में, और इक्विटी शेयर रिड्यूस हो रहा है कितने में, 25 पैसे में। तो पहले तो ये रिडक्शन का एंट्री पास करते हैं। तो जूना शेयर जो था, जो प्रेफरेंस शेयर है वो 6 लाख का है, इक्विटी शेयर है 12 लाख का, ये ध्यान में रखना। तो हम लोग कहाँ जाते हैं, लेट अस गो टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में फर्स्ट वन क्या हो रहा है, ओल्ड प्रेफरेंस शेयर, जो ओल्ड प्रेफरेंस शेयर था वो कैंसल होगा। मैंने क्या बताया था तुम लोग को लास्ट लेक्चर में, लाइबिलिटी is a credit balance, asset is a debit balance. Every lecture I tell you asset debit balance है, liability credit balance है। असेट को जब ज्यादा होता है तो डेबिट करते हैं, कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। और लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस है, ज्यादा होगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओल्ड प्रेफरेंस शेयर जो 10 रुपए का था वो कैंसल होके न्यू प्रेफरेंस शेयर 8 रुपए का क्रिएट होगा। तो जो शेयर कैंसल हो रहा है उसको हम शेयर लाइबिलिटी है, कैंसल होगा तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ कितने का था एक प्रेफरेंस शेयर, 10 रुपए का। तो अब कितने का था, 10 रुपए का। अब जो न्यू है, अब ये 10 रुपए और अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो 60,000 इंटू 10 इतने का था। अभी बदले में क्या क्रिएट हो रहा है, बदले में क्रिएट हो रहा है टू न्यू 6% प्रेफरेंस। परसेंटेज के बारे में कुछ नहीं बोला है तो सेम रहेगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो रहा है, 8 रुपीज का हो रहा है। तो 60,000 इंटू 8, कैन यू टेल मी कितना होगा, 60,000 इंटू 8, इट कम्स टू 4,80,000। एंड ये कंपनी के लिए क्या हो रहा है, जहाँ पे 10 रुपया पे करना चाहिए था ओल्ड शेयर के हिसाब से, हम लोग कितना पे कर रहे हैं, हम लोग पे कर रहे हैं 8 रुपया, क्योंकि 8 रुपए का नया शेयर दे रहे। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपीज पर शेयर, विच इज कमिंग टू 1,20,000। क्या हुआ, हमने ओल्ड शेयर को कैंसिल किया जो 10 रुपीज का था, और क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि कितना प्रेफरेंस शेयर है, 60,000 प्रेफरेंस शेयर है। अब हम लोग इक्विटी शेयर का करते, इक्विटी शेयर का नंबर है 12 लाख और अमाउंट भी है 12 लाख। क्यों दोनों 12 लाख क्यों है, क्योंकि एक इक्विटी शेयर 1 रुपए का है। तो 12 लाख इंटू 1 इज इक्वल टू 12 लाख। बट एज पर द क्वेश्चन इक्विटी शेयर अभी 25 पैसे का होने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान दो, इसका नरेशन नहीं लिखा हमने, तो नरेशन लिखते हैं, बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस, बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स, बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस। इसके बाद let us go to the second one,
सेकेंड वन में सेम ओल्ड, जो ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल है, डेबिट, कितना है ये 12 लाख इंटू 1, कितना हो जाएगा 12 लाख इंटू 1, 12 लाख। और बदले में हम क्रिएट करेंगे 2 न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कितने का क्रिएट हो रहा है 12 लाख इंटू 0.25, 25 पैसा मतलब कितना, 25 पैसा मत 1 रुपया का 25 पैसा, इस 25 पैसा को 25 पैसा नहीं लिख के मैंने 0.25 लिखा। सो कितना हो जाता है ये 0.25, इट कम्स टू, आर यू गेटिंग दिस आंसर, इट कम्स टू 3 lakhs। करो 12 लाख इंटू 0.25, 25 पैसा, यू विल गेट दिस अमाउंट। नाउ 2, बाकी जो कैंसिल हो गया शेयर, जो 75 पैसा कम हुआ, दैट इज द प्रॉफिट। सो 12 लाख into 0.75, which will come to, इसको बोलेंगे being इक्विटी शेयर्स रेड्यूस। यहाँ पे हमने ओल्ड और न्यू का क्यों शेयर्स क्रिएट किया, क्योंकि किधर भी नहीं बोला है कि फेस वैल्यू सेम रहने वाला है। अगर फेस वैल्यू विल बी सेम, so in that case what we will do, we will only pass effect for the profit, for the capital reduction. But here, as the old share is getting cancelled and new share is getting created, old share cancel होके नया शेयर क्रिएट हो रहा है, इसलिए हमने ऐसा ओल्ड और न्यू का एंट्री पास किया। अब इसके बाद एक कंसोलिडेशन मैंने तुम लोगों को पहले बोला हम बाद में करेंगे, वो क्या है भी मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगी। ध्यान में रखना, कंसोलिडेशन का एंट्री पास करना बाकी है, हमें भूलना नहीं है इसको ध्यान में, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके भी रखा है कि ये बाद में करेंगे। नेक्स्ट लेट अस रीड, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स waive 2/3 of the dividend in arrears and receive equity share for the balance। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो लोग अपना जो डिविडेंड है उसका 2/3 वेव करेंगे, वेव मतलब सैक्रिफाइस करेंगे, छोड़ देंगे। दे से दैट वी डोंट वांट 2/3 of our dividend, preference shareholder waive 2/3 of the dividend in arrears and receive equity share for the balance। मतलब 2/3 नहीं चाहिए, 3 में से 2 हिस्सा मत दो, पर 1 हिस्सा तो दो, पर 1 हिस्से में कैश मत दो, हमें इक्विटी शेयर दो। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि उनका जो 3 साल का डिविडेंड है, कितना साल का डिविडेंड एरियर्स में है, उनका 3 साल का डिविडेंड जो एरियर्स में है उसके बदले में वो लोग बोलते 3 में से 2 साल का मत दो, बोलते ना 2/3 मत दो, कम से कम बैलेंस 2/3 का बैलेंस कितना रहेगा, 3 में से 2 हिस्सा नहीं चाहिए, तो कितना हिस्सा चाहिए, 1 हिस्सा चाहिए। तो वो जो बैलेंस है 1/3, उसमें हमें इक्विटी शेयर दो, हमें कैश मत दो, हमें इक्विटी शेयर दो। जैसे कि द इक्विटी, सॉरी, द प्रेफरेंस shareholder waive 2/3 of the dividend in arrears and receive
equity share for the balance and receive equity share for the balance. तो हम क्या करेंगे, द वर्किंग नोट में जाते हैं. लेट अस गो टू द वर्किंग नोट. वर्किंग नोट में देखो कितना था प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल, 60,000 इंटू 10 ना टोटल. जो पहले हमारा प्रेफरेंस शेयर था उसका नंबर क्या है, 10, विच इज इक्वल टू 6 लाख. अब 6 लाख पे इनको कितना परसेंट का डिविडेंड है, 6 लाख पे इनको 6% का डिविडेंड पे करना है. ये 6% का डिविडेंड कितना होता है जरा देखो, 6% का डिविडेंड 6 लाख इंटू 6% इज इक्वल टू 36,000. ये 36,000 डिविडेंड है फॉर 1 ईयर. लेकिन हमारा जो क्वेश्चन में हमने देखा कितने ईयर का डिविडेंड पेंडिंग है, 3 इयर्स का डिविडेंड पेंडिंग है ना. तो 3 इयर्स का डिविडेंड पेंडिंग है. तो अगर 1 साल का डिविडेंड अगर 36,000 है तो 3 साल का डिविडेंड कितना रहेगा, 36,000 इंटू 3. करो 36,000 इंटू 3 कितना होता है, 36,000 इंटू 3 मीन्स 1,08,000. मिला आंसर. तो ये 3 साल का होता है 1,00,000 रुपीज, 1,08,000. ये है एरियर्स. इतना 3 साल से बोलते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको 6% का डिविडेंड है. ये कहाँ से मिला मुझे, क्वेश्चन में देखा कितना परसेंट डिविडेंड है, 6%. और कितना नंबर ऑफ शेयर है, 60,000. और एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज का. तो 60,000 इंटू 10 किया तो हमें प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल मिला 6 लाख. और 6 लाख पे क्या है, 6 लाख पे 6% का डिविडेंड है. 6 लाख पे 6% का डिविडेंड कितना होता है, 36,000 होता है. पर ये 36,000 तो 1 साल का डिविडेंड है. हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एरियर्स कितने ईयर्स से डिविडेंड पे नहीं किया. और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं ना, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का स्पेशल फीचर यही है कि अगर कोई सालों में डिविडेंड नहीं पे किया तो कंपनी क्या करती है, डिविडेंड उनका जमा करते जाती है. कंपनी क्या करती है, डिविडेंड को जमा करते जाती है. तो 3 साल का डिविडेंड अभी कितना जमा हो गया है, 1,08,000. लेकिन व्हाट डिड द शेयर होल्डर से, शेयर होल्डर बोलते हैं कि ये 1,08,000 में हमें कितना नहीं चाहिए, 2/3 वेव करने के लिए रेडी है. 2/3 क्या करने के लिए रेडी है, वेव. तो 1,08,000 का 2/3 निकालो. 1,08,000 का क्वेश्चन में बोला गया है कि 1,08,000 जो भी टोटल डिविडेंड है उसका 2/3 दैट इज 72,000 कंपनी ने क्या किया, वेव कर दिया. वेव कर दिया मतलब ये पे नहीं करेंगे. तो कितना पे करेंगे, 2/3 वेव कर दिया, वो नहीं पे करेंगे. अब 3 में से 2 हिस्सा भूल गए, मतलब नहीं चाहिए. तो एक हिस्सा तो चाहिए. तो 1,08,000 का बैलेंस पे करना है ना. तो 1,08,000 में से 72,000 नहीं पे करेंगे डिविडेंड तो कितना पे करेंगे, 36,000. तो ये 36,000 का डिविडेंड पे करना है, लेकिन कैश नहीं. क्वेश्चन में बोला है ये डिविडेंड के बदले में क्या देना है,
ये डिविडेंड के बदले में इक्विटी शेयर देना है. So we will go above, see what they have told कि the preference shareholder waive 2/3 of the dividend in arrear and receive equity share for the balance. तो ये प्रॉफिट है कि लॉस है? Anyone tell me? ये जो कंपनी ने शेयर होल्डर ने बोला कि तुम्हारा 3 साल का डिविडेंड, हमारा 3 साल का डिविडेंड एरियर्स में है, हमें 2/3 मत दो, 2 साल का डिविडेंड मत दो, हमें बैलेंस 1/3 पे करो, पर इक्विटी शेयर देखिए, ये प्रॉफिट है कि लॉस है? इट्स हाँ, some Sultan, you have said it's a profit, but I have told in every question dividend पे करना कंपलसरी नहीं है, तो तुम ये 1/3 भी क्यों पे कर रहे हो? कोई कंपल्शन नहीं है डिविडेंड देना. जितना तुमने पे करने के लिए अग्री किया डिविडेंड, दैट इज अ लॉस. जितना तुमने पे करने के लिए एग्री किया, दैट इज अ लॉस. सो यहाँ पे जो हम 36,000 पे करेंगे वो लॉस है. जो हम नहीं पे कर रहे 72,000, वो तो वैसे भी पे नहीं करना था, कोई कंपल्शन नहीं था. अगर हम कोई भी डिविडेंड पे नहीं करते ना, तो नो एंट्री होता, मींस नो प्रॉफिट नो लॉस. वैसे भी डिविडेंड कंपल्सरी नहीं है और हमने नहीं पे किया, तो कोई अलग प्रॉफिट नहीं हुआ है, वैसे भी नहीं पे करना था. तो जितना हमने पे किया उतना लॉस है. हमेशा अपने दिमाग में बिठा के लो दैट डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड, जितना पे किया उतना लॉस है. हम जितना पे करेंगे उतना लॉस रहेगा. लास्ट सम्स आल्सो वी हैव डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. तो जितना पे किया उतना लॉस, और लॉस होता है तो हम कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करते हैं. प्रॉफिट होता है तो हम कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करते. तो यहाँ पे हाउ मच इज द लॉस? 36,000. और बदले में क्या देंगे हम? कैश तो नहीं बाहर जा रहे, लाइबिलिटी क्रिएट हो रहे. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. कितना? 36,000. इधर लिखेंगे बीइंग arrears of preference dividend paid. Being arrears of preference dividend paid. So this is the narration. Now let us go ahead and see आगे what is given. Let us read the rest part of the question. बैलेंस तक हो गया. हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर वेव 2/3 ऑफ द डिविडेंड इन एरियर्स एंड रिसीव इक्विटी शेयर फॉर द बैलेंस. हमने दे दिया 2/3 डिविडेंड का एरियर्स वेव कर दिया और 1/3 पे किया. पे कैसे किया? इक्विटी शेयर दिया, कैश नहीं दिया, तो हमने एंट्री पास कर दिया. अब नेक्स्ट, ऑथराइज कैपिटल टू बी रिस्टोर्ड to 60,000 preference share of 10 each and 12 lakh equity share of 1 each. तो वो तो पहले भी उतना ही था, कम होके रिस्टोर करने बोला. और ऑथराइज कैपिटल रिस्टोर का कोई एंट्री नहीं है, वो हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां पे हम यही लिखेंगे कि ऑथराइज कैपिटल क्या है? 60,000 प्रेफरेंस शेयर ईच एंड 12 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 1 ईच. कभी भी ऑथराइज कैपिटल का कोई एंट्री नहीं होता. इट इज जस्ट शोन इन द liability side of the balance sheet as authorized capital, nothing else. So now next one, what we will do, the share in subsidiary limited are to are sold to an outsider for rupees 3 lakhs. क्या बोल रहे हैं? जो सब्सिडरी कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो क्या कर दिया? सब्सिडरी कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने what did we do? That we have sold to an outsider. So ऐसे सिचुएशन में हमने क्या किया?
सब्सिडरी कंपनी का, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी एट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी एट कॉस्ट 1,50,000, ये हमने बेच दिया किसी आउटसाइडर को 3 लाख में। अब बेच दिया तो व्हाट विल कम, अगर हम सेल करते हैं तो कैश आएगा, लेकिन 1,50,000 का चीज हम 3 लाख में सेल कर रहे हैं, तो इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस? इट इज अ प्रॉफिट। तो यहाँ पे नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो हमें क्या मिलेगा, जब हम इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो वी विल गेट कैश, तो हम लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट, कितना पैसा मिला 3 लाख, क्वेश्चन में बोला ना आउटसाइडर को सेल किया 3 लाख में, तो यहाँ पे 2, अब जब हम सेल करेंगे तो एक लाइन छोड़ देते हैं, अब सेल करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस होगा बराबर। अब सेल करेंगे, एक और चीज जो हमारा इन्वेस्टमेंट था इन सब्सिडरी कंपनी, वो तो कैंसल हो जाएगा, इन सब्सिडरी कंपनी ये कैंसल हो जाएगा, असेट है डेबिट बैलेंस कैंसल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते, तो 1,50,000 क्रेडिट में आया। अब कौन सा कम है, क्रेडिट ही कम है, ये क्रेडिट क्या है, हमने 1,50,000 का चीज को 3 लाख में बेचा, तो हमें क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और वो प्रॉफिट भी कितने का हो जाएगा, और इधर ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ प्रॉफिट, प्रॉफिट। सो ये इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग investment sold, being investment in subsidiary company sold, being investment in subsidiary company, being investment in subsidiary company sold। इसके बाद now let us move ahead and see what is the next adjustment, next information given, all intangible and fictitious assets are to be eliminated, are to be eliminated, and bad debts of rupees 42,000 and obsolete stock of rupees 60,000 to be written off। तो यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन में जितना भी इंटेंजिबल असेट्स है, जितना भी फिक्टिशियस असेट है, सबको कैंसल करना है, और उसके अलावा डेटर में बैड डेट्स है 42,000 का, वो भी कैंसल करना है, और ऑब्सोलीट स्टॉक जो है 60,000, मतलब स्टॉक जो है ऑब्सोलीट हो गया, आउटडेट हो गया, हमारे कुछ काम का नहीं है, तो उसको भी राइट ऑफ करना है, कैंसल करना है। अब असेट्स यहाँ पे कैंसल हो रहे हैं, तो ये प्रॉफिट है कि लॉस है, असेट्स कैंसिल हो रहे, तो ये लॉस है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लॉस होता है तो हम कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करते हैं, तो लेट अस गो हियर एंड लेट अस फर्स्ट राइट डाउन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, उसका क्या अमाउंट है वो बाद में समझेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। अब इसके बाद 2, जरा देखो इंटेंजिबल फिक्स एसेट कुछ है क्या क्वेश्चन में,
इंटैंजिबल फिक्स एसेट क्वेश्चन में एक ही है, दैट इज गुडविल 2,40,000। और हमारे पास फिक्टिशियस एसेट कुछ है क्या? फिक्टिशियस एसेट है P&L अकाउंट 5,28,000 और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 1,20,000। मतलब एक इंटेंजिबल एसेट है और दो फिक्टिशियस एसेट्स है, P&L अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। उसके अलावा स्टॉक 60,000 का ऑब्सलीट हो गया और डेटर में 42,000 का बैड डेट्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे और इधर लिखेंगे टू, सबसे पहले गुडविल अकाउंट, इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करना है। तो इंटेंजिबल एसेट कितना है? 2,40,000 है। उसके बाद टू, दो चीजें, एक तो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा है टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। और हम क्या कम कर रहे हैं? वी हैव टू, क्या बैड डेट्स मतलब क्या कम होगा? डेटर्स अकाउंट और ऑब्सलीट स्टॉक है। तो डेटर्स स्टॉक सब क्या है? असेट है। असेट को डेबिट बैलेंस होता है, पर असेट अगर कम होता है तो हम क्रेडिट, ये सब कैंसिल हो रहे हैं ना। तो लेट अस सी, P&L अकाउंट का क्या अमाउंट है? P&L अकाउंट का अमाउंट है 5,28,000। तो इधर लिखेंगे 5,28,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना है? इट इज 1,20,000। 1,20,000। सो इधर लिखेंगे 1,20,000। और डेटर मेरे को पता है बैड डेट्स हो गया है 42,000 का। और स्टॉक जो ऑब्सलीट हो गया है वो है 60,000 का। ये सबको ऐड करो, ये सबको ऐड करो, P&L अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट, गुडविल, डेटर, स्टॉक, ये सबको ऐड करो, कितना आ रहा है? आर यू गेटिंग? 9,90,000। तो दिस 9,90,000 कैसे मिला? सबको ऐड करके। अब हम क्या करेंगे, इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग assets and losses written off। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, fictitious assets, intangible assets and losses written off। पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, being assets and losses written off। इसके बाद let us see what is given next। नेक्स्ट में सी पॉइंट तक हो गया। अब हमारा डी पॉइंट, डिबेंचर होल्डर्स टू टेक ओवर वन ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टीज। डिबेंचर होल्डर क्या करने वाले? टेक ओवर करने वाले वन ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टीज, बुक वैल्यू 1,08,000 एट अ प्राइस ऑफ 1,20,000 इन पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिबेंचर्स। जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, ये कंपनी का एक प्रॉपर्टी लेके जा रहे हैं, पर कंपनी का प्रॉपर्टी का बुक वैल्यू कितना था? 1,08,000। ये लोग कितने में लेके जा रहे हैं? 1,20,000 में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? डिबेंचर होल्डर जो है, हमारे जो 6% डिबेंचर्स के होल्डर्स हैं, वो लोग क्या करने वाले हैं? एक असेट लेके जा रहे हैं 1,00,000। हमारा कंपनी का असेट प्रॉपर्टी लेके जाने वाले 1,08,000 का 1,20,000 पे। तो ये क्या होगा? ये हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट है, तो पहले प्रॉफिट का एंट्री पास करते हैं, यहाँ पे बाद में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं
6% डिबेंचर, क्यों मैंने 6% डिबेंचर डेबिट में लिखा, 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्यों? ये डिबेंचर है, ये लोग हमारा असेट लेके जा रहे, मतलब इनका क्लेम कम हो जाएगा। मतलब डिबेंचर होल्डर क्यों असेट लेके जा रहे, ताकि उन्होंने जो हमें उधार दिया है 6% डिबेंचर करके, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मतलब कर्जा है, ये कम हो जाएगा, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस। लेकिन जब लाइबिलिटी का हम पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगा और लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने में लेके जा रहे हैं ये लोग 1,20,000 में लाइबिलिटी लेके जा रहे, तो 1,20,000 कम हो जाएगा। और यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी लेके जा रहे हैं, और हमारे पास प्रॉपर्टी तो एक ही है। हमारे पास कौन सा प्रॉपर्टी है, देखो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इट इज लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट तो लेके नहीं जा सकते, बाकी सब करंट एसेट है। तो प्रॉपर्टी रेफर्स टू व्हाट, प्रॉपर्टी रेफर्स टू लैंड एंड बिल्डिंग, करेक्ट ना? व्हेन इट इज सेड कि कोई प्रॉपर्टी लेके गए कंपनी का, तो कंपनी के पास तो एक ही प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। वो क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग असेट है, असेट कम हो रहा है, क्योंकि ये असेट को डिबेंचर होल्डर लेके चले गए, ले लिया उन्होंने, अपने नाम पे करवा लिया, लेकिन कितने में, 1,08,000 का 1,20,000 में। तो लैंड का बुक वैल्यू तो 1,08,000 था, प्रॉपर्टी का बुक वैल्यू कितना दिया है, बुक वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 1,08,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे कम हुआ 1,08,000 में। और क्या हो रहा है इधर, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कितना, 12,000। ये क्या है, ये है प्रॉफिट, प्रॉफिट। तो इसका एंट्री क्या दिखेंगे, बीइंग डिबेंचर होल्डर्स, बीइंग डिबेंचर होल्डर्स क्लेम सेटल्ड। लेकिन पूरा क्लेम तो सेटल नहीं हुआ ना, पार्टली। पूरा डिबेंचर कम नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा सा डिबेंचर, कितने का, जरा लाइबिलिटी में देखो, डिबेंचर है 2,40,000 का, और हमने तो सिर्फ 1,20,000 पे किया। आगे लेट्स रीड, बोलते हैं एंड टू प्रोवाइड डिबेंचर होल्डर टू टेक ओवर वन ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टीज दैट इज एट 1,08,000, book value 1,08,000 at a price of 1,20,000 in part satisfaction of the debentures, and to provide further cash of rupees 90,000, and to provide further cash of rupees 90,000 on a floating charge। मतलब क्या करेंगे ये लोग इन बोल रहे ये लोग कंपनी का एक असेट लेके चले गए 1,08,000 का 1,20,000 में, एंड टू प्रोवाइड फर्दर कैश, और बदले में क्या कर रहे हैं, कंपनी को कैश देंगे बदले में। ये तो लेके चले गए, लेकिन और कैश देंगे ऑन फ्लोटिंग चार्ज। मतलब क्या है कि दे आर गोइंग टू, पहला जो डिबेंचर था वो सिक्योर था प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन अभी वो लोग एडिशनल अमाउंट देंगे एज डिबेंचर, और अब जो पैसा दे रहे 90,000 विल बी ऑन अ फ्लोटिंग चार्ज, विल बी हैविंग, मतलब एक स्पेसिफिक असेट पे उसका चार्ज नहीं होगा, इट विल बी अ फ्लोटिंग चार्ज, ओवरऑल चार्ज। तो वो सिचुएशन में क्या होगा, और जो बाकी का जो एरियर्स है इंटरेस्ट का,
इंटरेस्ट का कोई एरियर है क्या, वो भी पे करना है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट का एरियर है ये भी पे करने बोल रहे हैं, और बदले में क्या दे रहे, डिबेंचर होल्डर्स क्या दे रहे, 90,000 का कैश दे रहे। तो जब डिबेंचर होल्डर कैश देंगे तो बिजनेस को क्या मिलेगा, डिबेंचर होल्डर बोलते हैं कि 90,000 का कैश देंगे, तो 90,000 का कैश देंगे तो बिजनेस में 90,000 आएगा। पर कौन दे रहा है ये 90,000, टू कितना परसेंट, 6% डिबेंचर्स। तो ये कौन पैसा दे रहा है, डिबेंचर्स का पैसा आ रहा है, तो ये बोलेंगे 90,000। तो ये क्या नरेशन है, बीइंग फर्दर इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑन फ्लोटिंग चार्ज। डिबेंचर्स इशू हुआ फ्लोटिंग चार्ज में। और इसके बाद एक और चीज बोल रहे हैं कि ये जो इंटरेस्ट एक्रूड है, यहाँ पे देखो क्या है, इंटरेस्ट एक्रूड है, वो इंटरेस्ट 12,000 इंटरेस्ट एक्रूड जो है वो क्या करना है, ये इंटरेस्ट एक्रूड को, ये इंटरेस्ट को पे करना है। अभी इंटरेस्ट को पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, ये इंटरेस्ट को पे करेंगे तो पैसा जाएगा, लेकिन जो लाइबिलिटी है इंटरेस्ट एक्रूड का, लाइबिलिटी में हमने लिखा है देखो इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट जो है ये लाइबिलिटी में हमने लिखा है, ये इंटरेस्ट पे करने से ज्यादा होगा कि कम होगा, ये इंटरेस्ट पे करने से कम होगा। और ये इंटरेस्ट जो है ये लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट एक्रूड। तो लाइबिलिटी जब पे होता है तो कम होता है तो डेबिट हो जाता है, तो इंटरेस्ट accrued on डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है, 12,000 है ना इंटरेस्ट अक्रूड, 12,000। तो बदले में बोलेंगे टू, इसको पे करेंगे कैश बैंक अकाउंट 12,000 being interest on डिबेंचर पेड, ये पे कर दिया, इंटरेस्ट अक्रूड लाइबिलिटी था, पे कर रहे तो कम होगा लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस कम होता है तो डेबिट करते हैं, और क्या बाहर जाएगा पे करने पे, कैश। तो दिस इज ऑल्सो डन। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द नाइन्थ वन। तो यहाँ पे इसके बाद दिया है डायरेक्टर्स रिफंड ₹20,000 ऑफ द फीस प्रीवियसली रिसीव्ड बाय देम। तो डायरेक्टर्स ने उनको पहले जो फी मिला था वो कंपनी का बुरी हालत देख के वापस कर दिया। डायरेक्टर्स को कभी तो डायरेक्टर्स को मीटिंग कंडक्ट करने का फी मिलता है, दे गेट एन दे गेट अ amount, they get a fees, professional charges, they get fees for attending meetings, बोर्ड मीटिंग्स। तो उनको जो फीस मिला था 20,000 का, डायरेक्टर्स ने बोला अब कंपनी का, और ये बहुत पहले का मिला हुआ था, तो दे सेड दैट वो फीस अभी हम लोग को नहीं चाहिए, वो फीस हम लोग वापस करेंगे। तो वो फीस वो लोग वापस करेंगे, तो टेल मी क्या आएगा, when the directors will refund the fees paid to them previously, जो पहले जो उनको कभी तो फीस दिया था डायरेक्टर्स मीटिंग का, वो फीस वो लोग रिफंड करेंगे, तो कंपनी को क्या मिलेगा, कंपनी को तभी मिलेगा कैश, कंपनी को मिलेगा कैश। और ये क्या है, ये प्रॉफिट है कि लॉस है, डायरेक्टर्स लोग पैसा दे रहे हैं, अपना फीस वापस कर रहे हैं कंपनी को, तो ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में होगा, और कैश मिलेगा मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, ये कैश
बैंक अकाउंट डेबिट, कितना डायरेक्टर्स लोग ने कितना पैसा दिया, 20,000, इसको बोलेंगे टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बीइंग directors refunded the fees, being fees refunded by directors. इसके बाद let's see what else is given, ये तो पैसा वापस मिला। इसके बाद एफ वाला पॉइंट बोलते हैं द कंटिंजेंट लाइबिलिटी मटेरियलाइज्ड इन द सम स्टेटेड बट द कंपनी, एक मिनट देखो यहाँ पे क्या बोला, द कंटिंजेंट लाइबिलिटी मटेरियलाइज्ड इन द सम स्टेटेड, मतलब यहाँ पे कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी है क्या नोट में, हाँ ये जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है दिस materialized at the sum stated, मतलब जो सम जो अमाउंट स्टेट किया था उतना ही अमाउंट में डैमेजेस पे करना पड़ा। The contingent liability materialized at the sum stated, मतलब जो सम जो अमाउंट सम एसयूएम सम मतलब जो अमाउंट स्टेट किया था, the contingent liability materialized at the sum stated, जो सम स्टेट किया था बताया था उतने में ही पे करना पड़ेगा। तो हम क्या करना पड़ेगा, उसका एंट्री ऐसा रहेगा कंटिंजेंट लाइबिलिटी पे कर रहे, कंटिंजेंट लाइबिलिटी पे करना हमेशा लॉस है, कोई भी कंटिंजेंट लाइबिलिटी तुम पे करो वो लॉस है। अब लॉस मतलब कैपिटल रिडक्शन डेबिट रहेगा, अब पे करेंगे तो क्या बाहर जाएगा, टू कैश बैंक अकाउंट, कितना पे कर रहे हैं हम 60,000, इसको बोलेंगे बीइंग कंटिंजेंट लाइबिलिटी पेड, कंटिंजेंट लाइबिलिटी पे किया। अब आगे व्हाट दे से कंटिंजेंट लाइबिलिटी पे कर दिया, अब कंटिंजेंट लाइबिलिटी पे कर दिया बट द कंपनी रिकवर्ड, अब पे कर दिया 60,000 बट द कंपनी रिकवर्ड ₹30,000 ऑफ दिस डैमेजेस, जो डैमेजेस के लिए कंपनी ने पे किया उसमें से 30,000 कंपनी को वापस आ गया, उसमें से 30,000 कंपनी को वापस आ गया, कंपनी को 30,000 वापस आ गया, 30,000 कंपनी को वापस आ गया, सी या rupees 30,000 of these damages in action against one of its directors, rupees 30,000 of these damages in action, मतलब उन्होंने डैमेजेस हुआ तो किसके ऊपर एक्शन लिया, एक डायरेक्टर के ऊपर एक्शन लिया, डैमेजेस पे करना पड़ा तो किसका तो गलती होगा, तो ये डैमेजेस उनको कोई डायरेक्टर के गलती के वजह से पे करना पड़ा, कोई बिजनेस डिसीजन में गलती हो गया रहेगा एक डायरेक्टर का, पर वो डायरेक्टर ने क्या बोला 60,000 तो पे किया बट दे रिकवर्ड 30,000 of these damages in action against one of its directors, in action against one of its directors which was debited to his loan account of 48,000 and the balance of the loan was paid in cash on his resignation, मतलब ये जो भी डैमेजेस हुआ एक डायरेक्टर के वजह से हुआ, तो उस वो डायरेक्टर ने बिजनेस को लोन दिया था, वो डायरेक्टर ने बिजनेस को लोन दिया था, देखो इधर डायरेक्टर्स लोन करके है, कितने का लोन है 1,50,000, पर इसमें तो डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर्स मीन्स मोर देन वन डायरेक्टर्स का लोन है ये, तो वो लोन में 48,000 का लोन जो है
वो डायरेक्टर ने दिया था, जिसके वजह से ये डैमेजेस पे करना पड़ा कंपनी को। तो वो डैमेजेस का 30,000 तो कंपनी ने वो डायरेक्टर के ऊपर चार्ज लगाया, और उसके बाद डायरेक्टर को बोला यू हैव टू रिजाइन फ्रॉम योर ऑफिस। ही रिजाइंड। तो बैलेंस 48,000 का लोन था, 30,000 तो कंपनी ने खुद को रख लिया, और 18,000, 48,000 का डिफरेंस 18,000 कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 18,000 उसको पे कर दिया। पे करेंगे तो कैश बाहर जाएगा। तो यहाँ पे क्या एंट्री आएगा, सबसे पहले देखो, ये जो लोन है डायरेक्टर का 48,000 का, अब वो लोन पे कर रहे हैं, तो डायरेक्टर लोन लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, पर अब हम ये लोन को पे करेंगे तो इसको कैंसल करना पड़ेगा। तो कैंसल मतलब क्रेडिट का ऑपोजिट, क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट। डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट, कितने का लोन है, 48,000 का। आई नो यू हैव अनदर लेक्चर, बट प्लीज थोड़ा 5-10 मिनट दे दो मुझे। सो देखो यहाँ पे डायरेक्टर्स लोन, इवन आई हैव एन अदर लेक्चर। डायरेक्टर्स लोन है 48,000 का, ये कैंसल हो रहा है, और बदले में टू क्या हो रहा है, ये लोन तो है उसका 30,000 कंपनी नहीं पे कर रहा है। यहाँ पे 48,000 का लोन है, पर कंपनी ने कितना पे नहीं किया, 30,000 पे नहीं किया, क्योंकि वो लोग डायरेक्टर के ऊपर डैमेजेस लगा रहे। लेकिन वो डायरेक्टर ने जब रिजाइन किया तो बाकी का बैलेंस अमाउंट उसका पे कर दिया। उसके रिजाइन करने पे बाकी का बैलेंस अमाउंट पे कर दिया। वो बैलेंस अमाउंट कितना रहेगा, वो बैलेंस अमाउंट रहेगा 48,000 माइनस 30,000, which is equal to how much, 18,000। तो इतना पे कर दिया। तो इसके बाद इसको क्या बोलेंगे, बीइंग डायरेक्टर्स लोन सेटल। लेकिन ये एक डायरेक्टर नहीं है, बीइंग वन ऑफ द डायरेक्टर्स लोन सेटल। पूरा डायरेक्टर्स लोन तो हमने सेटल नहीं किया, क्योंकि पूरा डायरेक्टर्स लोन जो है वो 1,50,000 का है। पूरा डायरेक्टर्स लोन कितने का है, 1,50,000 का है। और हमने क्या किया, सिर्फ हम उसका 48,000 हमने सेटल किया, और 48,000 सेटल किया। इसके बाद लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। द रिमेनिंग डायरेक्टर्स agreed to take equity shares in satisfaction of their claims। जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स है उन्होंने क्या लिया, इक्विटी शेयर्स लिया इन satisfaction of their loans। सो रिमेनिंग डायरेक्टर्स लोन कितना है, जरा वर्किंग में देखो। डायरेक्टर्स लोन, डायरेक्टर्स लोन जो है 1,50,000 का था, हमने देखा क्वेश्चन में, जिसमें से हमने 48,000 सेटल कर दिया। तो बचा कितना अभी, 1,02,000 बचा हुआ है। ये 1,02,000 अभी कैसे पे होगा, ये 1,02,000 पे होगा बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन में बोला गया है जो बैलेंस डायरेक्टर लोन है वो भी पे कर दो, लेकिन कैसे पे करो, बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। कैसे पे करो, बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो लेट अस कम हियर, बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो डायरेक्टर लोन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी कम हो जाएगा। और लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस कम होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये कितना है, 1,00,000
2000 और इसको बोलेंगे 2, क्या जा रहा है बाहर, हम क्या दे रहे हैं इक्विटी, व्हाट आर वी पेइंग, वी आर पेइंग इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इधर लिखेंगे 1,02,000 being directors loan settled. Now last यहाँ पे भी देखो हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था, दैट इज कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का पॉइंट हमने छोड़ दिया था। अभी हमें क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर को भी कंसोलिडेट करना है और इक्विटी शेयर को भी। पहले प्रेफरेंस शेयर्स को कंसोलिडेट करते। कंसोलिडेशन मतलब क्या है, हम क्या करते, कम, जो कम वैल्यू के शेयर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 8 रुपीज का शेयर हो गया है, उसको अब हम कंसोलिडेशन करके क्या करने वाले, 10 रुपीज का करने वाले, कंसोलिडेशन करके हम 10 रुपीज का करने वाले। तो यहाँ पे देखो तो जो प्रेफरेंस शेयर था कितने का था, ये देखो न्यू प्रेफरेंस शेयर है, ये न्यू प्रेफरेंस शेयर, इसके बदले में अभी हम क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड शेयर्स इशू करेंगे। तो ये इसको कैंसल करना है न्यू को, और बदले में कंसोलिडेटेड शेयर्स को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो क्रेडिट में था, तो वो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने का है, देखो वो 4,80,000, उसके बदले में हम क्रिएट करेंगे, ये कितने का था, ये 8 रुपीज का था, इसके बदले में हम क्रिएट करेंगे 6% कंसोलिडेटेड, ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कंसोलिडेटेड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने का, अमाउंट सेम रखना है, अमाउंट में कोई इफेक्ट नहीं आता, सिर्फ ये जो 8 रुपए का था अभी बदले में ये कितने का हो जाएगा, 10 रुपीज का हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स कंसोलिडेटेड, बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स कंसोलिडेटेड। और एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर्स अब हो गया 10 रुपए का, मतलब क्या हो जाएगा, पहले 60,000 का प्रेफरेंस शेयर था, अब पहले नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना था, 60,000, अभी कितना हो जाएगा देखो, 4,80,000 डिवाइड बाय 10 करो, कितना हो जाता है, अभी जो प्रेफरेंस शेयर का नंबर है वो 48,000 हो जाएगा। कैसे, पहले 8 रुपए का शेयर था तो 60,000 इंटू 8 इट वॉज 4,80,000, और अभी हमारे पास 4,80,000 ही है कैपिटल, लेकिन एक शेयर 10 रुपए का है, तो 4,80,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो अभी नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 40,000 हो जाएगा। पहले 60,000 इंटू 8 था, अभी 48,000 इंटू 10 है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू जो है वो चेंज हो गया है, कंसोलिडेट हो गया। कंसोलिडेशन में वही होता है, शेयर्स का नंबर जो है वो कम हो जाता है और शेयर का फेस वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अभी हमें जो करना है वो है इक्विटी शेयर को कंसोलिडेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमारे पास इक्विटी शेयर कितना है जरा ऊपर से देखते हैं, और एक जगह नहीं, इक्विटी शेयर हमारे पास, मैं उसको हाईलाइट करती हूँ, इक्विटी शेयर यहाँ पे हमारे पास है 3 लाख
इक्विटी शेयर कंसोलिडेट हो गया है 0.25 में, तो इधर है 3 लाख। फिर देखो हमारे पास इक्विटी शेयर इधर भी है 36,000, सो 3,36,000 हो गया। फिर किधर इक्विटी शेयर हमने दिया है क्या, देखो फिर किधर इक्विटी शेयर है, फिर किधर इधर डायरेक्टर्स को हमने फिर से प्रेफरेंस इक्विटी शेयर दिया, तो हमारे पास इक्विटी शेयर 3 जगह में 3 लाख, 3 लाख के बाद 36,000, फिर हमारे पास है 1,02,000। सबको ऐड करो, 3 लाख प्लस 36,000 प्लस 1,02,000 हो जाता है 4,38,000। तो हमारे पास इक्विटी शेयर जितना भी था वो पूरा ऐड करने पे होता है 4 लाख कितना 38,000। तो इस एक इक्विटी शेयर है, जितना भी इक्विटी शेयर पहले कितने का था 0.25 का। तुम लोगों को चाहिए मैं इधर लिखूं कैसे मिला ये, पहले का 3 लाख, फिर प्लस 36,000 मैंने बोल्ड में कर दिया है उसको, प्लस 1,02,000, ये सबको ऐड करने से मुझे ये मिला है। इसके बाद 2 हम क्या देंगे इसके बदले में, कंसोलिडेटेड इक्विटी शेयर कैपिटल। ये तो बिल्कुल चेंज, कंसोलिडेशन में कभी भी अमाउंट चेंज नहीं होता, तो इसका भी नरेशन है बीइंग equity shares, consolidated, तो ये हो गया इक्विटी शेयर कंसोलिडेट हो गया। एंड इसके बाद सॉरी यहाँ एक लास्ट एंट्री अभी भी बाकी है, that last entry is for capital reduction transfer, लास्ट एंट्री फॉर कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर। तो कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैपिटल रिडक्शन को सब जगह से ऐड करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए होमवर्क है, यू हैव टू डू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, आई एम नॉट डूइंग इट। कितना, एक मिनट, इस कैपिटल रिडक्शन किधर सब क्रेडिट को ऐड करना पड़ेगा और डेबिट को भी। तो हम लोग रफ में कैपिटल रिडक्शन यहाँ पे है 1,20,000, क्रेडिट में 1,20,000, फिर हमारे पास क्रेडिट में टेक योर कैलसी, फिर हमारे पास है 9 लाख। तो ये 9 लाख प्लस 1,20,000 कितना हो गया क्रेडिट का, 10 lakh. Shall I write it in the working note so that there is no confusion? I'll talk to your computer teacher, don't worry. दो जगह पे एक डेबिट, ये अकाउंट बनाना है लेकिन मैं ये रफ में करके दे रही हूँ तुम लोग को, अकाउंट तुम लोग होमवर्क में प्रिपेयर करोगे। हमारे क्रेडिट में पहले था 90,000 ना, कितना था 9 लाख, करेक्ट 9 लाख था पहला, 1,20,000 फिर 9 लाख। तो मैंने यहाँ पे लिखा 9 लाख एंड 1,20,000। फिर किधर है कैपिटल रिडक्शन, फिर डेबिट में है 36,000, सो डेबिट में लिखेंगे 36,000। फिर इसके बाद डेबिट के बाद इट इज इन क्रेडिट 1,50,000, सो क्रेडिट में लिखेंगे 1,50,000। क्या करना है, कैपिटल रिडक्शन को जिधर जिधर कैपिटल रिडक्शन है, डेबिट में है तो डेबिट में लिखना है, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखना है, और बाद में उसको टोटल करके देखना है कि कौन सा साइड हैवी है। तो हमने देखा फोर्थ एंट्री में डेबिट साइड में 9,90,000 में है, तो इधर लिखा 9,90,000। इसके बाद आफ्टर 9,90,000 फिर कैपिटल रिडक्शन 12,000 के लिए क्रेडिट में है,
सो कैपिटल रिडक्शन इधर लिखा 12,000, इसके बाद कैपिटल रिडक्शन किधर है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में नहीं है, इसके बाद डायरेक्टली 9th एंट्री में अगेन इट इज इन द क्रेडिट 20,000, तो लिखा 20,000, then we have capital reduction in the debit for 60,000, so capital reduction लिखा डेबिट में 60,000, फिर इसके बाद कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में 30,000, कैपिटल रिडक्शन। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन कोई भी एंट्री में नहीं है, तो हम लोग को क्या करना है, इसको बस ऐड करना है दोनों साइड को। देखो दोनों साइड का टोटल देखो कौन सा साइड हैवी है, क्रेडिट ही हैवी रहेगा। तो कितना है क्रेडिट का अमाउंट बताओ, 9 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, this coming to 12,32,000, एंड डेबिट साइड का टोटल क्या है 36,000 प्लस 9,90,000 प्लस 60,000, that is it is 10,86,000, 10,86,000। तो अभी हमारा इसका मतलब क्या है, that credit side is heavier, तो डिफरेंस कितना रहेगा, देखो माइनस करो, हमें डिफरेंस आता है 1,42,000 का। तो ये 1,42,000 जो है, सॉरी 1 लाख डिफरेंस आता है 1,46,000 का। तो ये जो 1,46,000 है ये है ट्रांसफर, ये इसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। सो लास्ट एंट्री कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस जो है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट जो भी बैलेंस है वो किधर डालेंगे, नए रिजर्व में, दैट इज कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस खत्म हो गया तो हम उसको खाली करेंगे एंड उसका बैलेंस जो है दूसरे रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, दैट इज कैपिटल रिजर्व। इसके साथ दिस वन इज डन।